Okay, so good evening, everyone. I am Kashish, and today we are going to start with a new topic of division, that is 5 digit divided by 1 digit. So, in this topic, it is really important to remember the previous topics of division which we have done. Basically, 2 digit divided by 1 digit, 3 digit divided by 1 digit, and 4 digit divided by 1 digit. If you know these topics really well, you'll be able to do 5 digit divided by 1 digit also really very easily, because the steps are same. You have just added one more digit into 4 digit. So I can say, or we can say, that agar aapko, if you know 2 digit divided by 1 digit well, then you can do it with 3, 4, 5, 6, 7, as many digits as you want. Okay. And today I would like to tell you one thing, that I'm not providing notes today. So please don't note anything that I write here, because this is not neat. I will provide you notes afterwards. Okay. So in this thing, obviously we'll have a number of 5 digits. I'm writing a reference question. Please don't mind my handwriting. Reference question 57190 divided by 2. Now, what will be our first step in this? We have to first find out कि हमारा first step क्या होगा. इसके अंदर हमारा first step our first step would be to find out हमारा कितने digits में answer आएगा. In how many digits our answer will be. So, suppose that this is very important, okay? Because imagine if your answer has to come in 3 digits, but your answer is coming in 4 digits, then it's basically wrong, right? Because आना तो 3 digits में था, it has to come in 3 digits, but आपको 4 digits में right is one more digit, so it is wrong basically. So that is why it is important to know in how many digits your answer will come, and this is not like basically a step. It is just a thing that is easy very easy, and we have done this in previous one also. So the division, like, to figure this out, it is very important to know this thing. Division क्या है? What is division? Repeated subtraction या माइनस करते हो आप किसी चीज को, तो सिंपल है, यहाँ पे भी वही करना है. How many digits are these? 5 digits. How many digit is this? 1 digit. So 5 digit -1, the 5 - 1 is how much? 4. तो या तो आपका 4 digit में आंसर आएगा, या आपका 5 digits में आंसर आएगा. सिंपल बात है. अगर मेरे पास यहाँ पे 3 digit का नंबर होता तो मैं 3 digit में आता या 2 digit में आता. So basically the number of digits that I have, that digit and one more less than that, then it will be our answer. So if I'm saying मेरे पास कोई 5 digit का number है, like this number, then my answer will come in either 5 digits or in 4 digits. Okay, it can be less also, not less than 4 digit partner. Okay, not 3 digit, only 4 digit or 5 digit, not 6 or not 3 or 2 or 1. Okay, only 5 or 4. Okay, now let's check with our real actual wala first step, that is to divide the first digit of our 5 digit number with the second digit जो हमारे पास है. I'll just change my pen का color. ठीक है. Now first digit we have here is 5. 5 है, हमें second digit से divide करना है, मतलब इस first digit से 2 से divide करना है. 5 divided by 2 कितना होगा? अब 5 does not come in 2 का table, 2's table, right? So what we'll do here, we will simply take the digit उससे छोटी है जो digit है. We'll take a digit smaller than 5 if you want to divide it by 2, like we do in a normal division. तो क्या लेंगे? हमने 4 लिया. 4 कौन से नंबर पे आता है हमारा? 2 पे आता है 2 के टेबल में, राइट? 4 हमारा 2 पे आता है 2 के टेबल में. So we'll write here 2. ओके. अब ये 2 यहाँ से नहीं आया. रिमेम्बर 4 आता है 2 के टेबल में सेकंड नंबर पर, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है. डोंट मेक दिस मिस्टेक कि सेकंड डिजिट हमारी यहाँ पे 2 है तो मैंने 2 लिख दिया. नो, मेनी स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक, बट एक्चुअल में वी हैव डन दिस प्रॉपर स्टेप. 5 को डिवाइड करा है. अब now I have not divided 5 पूरा. I have not divided 5 fully or wholly here. I have only divided part of it, that is 4. So I have something remaining, right? What is that remaining? So what I'll do, the number which are divided, I'll just minus it from. So 5 - 4 कितना हो गया? 1. 1 हो गया. 1 हमने carry ले लिया.
ओके, फ्रॉम नाउ हियर बिगिंस आवर सेकंड स्टेप कि हमें सेकंड डिजिट को डिवाइड करना है टू, टू से, जो हमारी सेकंड डिजिट है, मतलब हमारी जो वन डिजिट का नंबर है, एंड इफ यू हैव टू डिवाइड इट विद द कैरी, सो हमारे पास वन कैरी था, तो 7 + 1 8 नहीं हो जाएगा, वो 7, सॉरी 7 और यहाँ पे 1 है, तो वो पूरा 17 हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी होल 17, इट विल नॉट बी 1 + 7 8, नो दिस इज रॉन्ग, 1 7 17 होगा। तो 17 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 8 आएगा, हमारा 1 बच जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 16 हमने लिया 8 पे आता है, 16 को 17 से माइनस करा, 1 बचा, है ना। तो 1 को भी हम यहाँ पे कैरी पे लिख देंगे, और यहाँ से हमारा थर्ड स्टेप शुरू होता है। सारे स्टेप सेम है, बस डिजिट के साथ चलते रहना है, ठीक है। अच्छा, डिजिट को डिवाइड करना है हमारी वन डिजिट वाले नंबर से कैरी के साथ पर, ठीक है। 1 + 1 नहीं करेंगे, 1 1 11 करेंगे, जैसे हम करते हैं ना गेम्स में कि कितनी फिंगर्स हैं, तो कोई कहेगा 2 है, कोई कहेगा 1 1 11 है, तो हमारे यहाँ पे 1 1 11 सही है, 2 सही नहीं है अब, ठीक है। सो 11 कहाँ पे आता है, आता ही नहीं है, क्या आता है, 10 आता है, किस पे आता है, 5 पे आता है, कितना बचा, 1 बच गया, तो 1 यहाँ पे कैरी लेंगे, हो गया हमारा फोर्थ स्टेप शुरू। 1 9 19 को हमें 2 से डिवाइड करना है, 19 आता नहीं है, क्या आता है, 18 आता है, कौन से पे आता है, 9 पे आता है। बचा कितना हमारे पास, 1 बचा फिर से, तो 1 को यहाँ पे ले लेंगे कैरी, यहाँ से हमारा शुरू होता है फिफ्थ स्टेप। तो 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज हाउ मच, 5 again. So our answer is 28595, and I will rewrite it because my handwriting is really very bad. 289 28595, right? So I'll not remove the carry. So our answer is 58595, and जैसे मैंने कहा था 5 या 4 डिजिट में आंसर आएगा, 5 डिजिट में आंसर आया है, राइट। So is this clear? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, but it's Yes. 2859. 2859. 2895. Yeah, Yes. sorry. I am very sorry. Thank you for correcting me. It is 2895. I am very sorry. I remembered 5. वो हमारा दो प्लेस 5 आ गया ना. It was rhyming, so I wrote 5. We are doing poetry here. Okay. So 28595 is our answer. I'm sorry, I wrote 5 there before in place of 2. 28595 is our answer, 28,595, which means 579 multiplied by this number. Sorry, yes. This number multiplied by 2 will give you this, and this number multiplied by this number will give you this. Okay. ये मत सोचना 557,000 वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई करूंगी 2 से तो ये आएगा, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, विच इज द सेम, ठीक है। तो इतना समझ में आया, एनी डाउट? No. ओके। और एनी क्वेश्चन जो आपको पर्सनल में पूछना है, कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर डाउट है? No. ओके, सो लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस, करते हैं, है ना। Okay, so we'll take random digits ले रही हूँ मैं. I have not written these questions. 68794 divided by 5, ठीक है। कैसे करेंगे? 6 को पहले करेंगे 5 से डिवाइड, कितना आएगा, 1 आएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 18 आया, 18 कैसे डिवाइड होगा, 3 पे आएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा उसके अंदर, तो 37, 37 नहीं आएगा, 35 आएगा, 7 पे आएगा, माइनस करेंगे 2 बचेगा, 29 हो जाएगा, यहाँ पे 29 नहीं आएगा, 25 आएगा, कितने पे आएगा, 5 पे आएगा, 4 बचेगा, 4 यहाँ पे लिखा, 44 नहीं आएगा, 40 आएगा, 8 पे आएगा, फिर 4 बचेगा हमारा नंबर, और इसके बाद हमें जाना पड़ेगा डेसिमल में। अब ये क्वेश्चन एक एग्जांपल है डेसिमल वाले क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में यू नीड टू डू टू थिंग्स, या तो डेसिमल में चले जाओ, या तो रिमाइंडर को वैसे ही छोड़ दो। रिमाइंडर को वैसे कैसे छोड़ोगे, देखो, जैसे मैंने लिखा 1 3 7 5 8, ठीक है।
अगर डेसिमल में नहीं जा रहे, रिमाइंडर छोड़ रहे हो, तो वैकस में ऐसे जरा सा स्लैश लगा के आप रिमाइंडर लिख सकते हो, जो हमारा यहाँ पे 4 था। ठीक है, ये आप अपने मैथ्स के एग्जाम में नहीं लिख सकते, आप सिर्फ ये वैकस में लिख सकते हैं जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो। ठीक है, बेसिकली दिस इज अ वे टू मेक स्मॉल चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कि अब अगर आपको डेसिमल नहीं पढ़ा रहे हम उन्हें, तो हम ये करवा देंगे। बट एज वेर ना बिगर लेवल, तो आप ये कर सकते हो कि आप डेसिमल में चले जाओ, रिमाइंडर की जगह रिमाइंडर ना लिखो। ठीक है, but you can also write the remainder if you want to, but I think it's better to go in decimal. अब डेसिमल में कैसे जाएंगे? हमारा आंसर आ गया 13758। रिमाइंडर कितना था? 4। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हमारा रिमाइंडर था 4, मैंने आर लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं अपने आंसर के सामने ये पॉइंट लगा दूंगी, डॉट लगा दूंगी, जिसे हम डेसिमल कहते हैं। डेसिमल लगाया, उसके बाद जो मेरा रिमाइंडर था ना, उसके अंदर मैंने एक 0 ऐड कर दिया, तो मेरा कितना बन गया? 40 बन गया। 0 4 नहीं, 40 बन गया मेरा। मैंने 40 को डिवाइड करा 5 से, कितना आया? 8 आ गया। सिंपल। और पूरा डिवाइड हो रहा है क्योंकि 5 8 जार इज 40, 8 5 जार इज 40। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आ गया। अगर सपोज मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन होता जिसके अंदर मुझे फर्दर मोर और आगे जाना पड़ता बेसिकली, जैसे मतलब 5 में तो हम ऐसे कर नहीं सकते कि 0 आ जाएगा तो ऑब्वियसली 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। बट सपोज मेरे पास होता कि मुझे आगे जाना है, सपोज यहाँ पे 1 आता, 2 आता, 3 आता, 9 आता, 7 आता, तो यू कैन गो अप टू 2 नंबर्स ओनली। आप अगर 3 4 इतना लंबा लेके जाना चाहते हो, आपकी मर्जी है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। आप सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे हमारी तो सारी आई नहीं है, सिर्फ एक ही आया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 13,758.8। ठीक है, Yes, ma'am. अंडरस्टूड? Yes. डाउट? No. ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, देन विल एंड। ओके, सो 7 5 3 8 1 divided by 7. Okay, I'm taking very random numbers right now. This is 5. Okay, this is 5. I'll just erase it. This is 5. 7 को 7 से डिवाइड करा, कितना आया? 1। ये 1 है। ठीक है, दिस इज 1। ओके, नाउ कोई कैरी है ही नहीं। 5 को डिवाइड करा 7 से, 5 आता नहीं है, बस ही छोटा है, तो मैंने पूरा 53 ले लिया। अब मैंने पूरा 53 लिया तो मैं 0 लगाऊंगी। बेसिक डिविजन मेथड जो स्कूल में करते हो, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस टू यू। ओके, 53 को डिवाइड करा 7 से, कितना आया? 53 आता है? नहीं आता। 54 आता है, पर वो तो ज्यादा हो गया। तो कितना आता है? हम्म, नो 54 नहीं आता, 56 आता है। आई एम सॉरी, 56 आता है, मेरी मैथ्स खराब हो गई शायद। 56 आता है। एंड उससे पहले क्या आता है हमारा? 49 आता है। कौन से पे 49. आता है? 7 पे आता है। तो हमने 49 को माइनस करना है 53 से, कितना आएगा? 4 आएगा। 4 को हमने यहाँ पे कैरी लिया, 48 आया। 48 नहीं आता हमारा, हमारे पास आता है 42। 6 पे आता है, कैरी कितना बनेगा हमारा? 6 बनेगा। 61 नहीं आता है, 61 की जगह हमारा 56 आता है। 8 पे आता है, और हम अगर रिमाइंडर निकालेंगे तो हमारा बनेगा 5। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे ही छोड़ सकते हो और स्लैश लगा के 5 लिख सकते हो, बट आई एम गोइंग इनटू डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं आंसर नीचे लिख रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव इनफ स्पेस ऑन माई राइट हैंड साइड ऑफ माई इक्वेशन। ठीक है, मैं डेसिमल पॉइंट्स में जा रही हूँ। हमारा रिमाइंडर कितना था? 5। तो 5 के आगे 0 लगाया, 5 और 0 कितना आया? 50। तो 50 को डिवाइड करेंगे, 49 आएगा। 7 पे आएगा, 1 बचा, 1 के आगे 0 लगाया, 7 पे 1। 3 आया, 3 पे 0 लगाया, 28 आ गया, फिर 20 आया, 20 नहीं आता, 14 आता है, 2 पे आता है, 6 आया, 60 60 नहीं आता, 8 आता है। ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा, मैं आगे नहीं कर रही। आपका ड्यूटी है कि आप सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट्स तक लिखो, जिस मतलब प्लेसेस तक लिखो। टिल 7 1 इट इज फाइन। इफ यू वांट टू राइट 3 4 5 up to infinity, your choice, but till 2 decimal points it's fine. Okay, Okay, ma'am. ठीक है। एंड यू कैन सी इफ देयर इज अ स्कोप ऑफ लाइक, अगर वो 3 या 4 पॉइंट में खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा, तो लिख ही दो अगर 3 या 4 पॉइंट में खत्म हो रहा है, बट यू कैन सी फॉर योरसेल्फ
2 decimal points places are enough. Okay, so my answer now is 10,768.71. ठीक है, डेसिमल के बाद वाली प्लेसेस को हम सेपरेटली बोलते हैं, 71 नहीं 71 लेंगे. ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. डाउट? No. Okay, so this was all for today. I hope you liked the session. No